जी दिखाइए। ओके जी, सो दिस वाज द टेस्ट पेपर दिएगा। आइडेंटिफाई द प्लेस, क्लोज द मोस्ट, सॉरी, आई गो व्हेन आई फील सिक। ठीक है, एक काम करते हैं, क्योंकि आज टेस्ट डे है, सो मैं स्पीकिंग का भी टेस्ट ले लेता हूँ। सो आई विल मार्क यू गाइस अकॉर्डिंगली। मार्क्स मिलेंगे इस बार, ऐसे ही नहीं होगा। ठीक है। ओके। दो चीज़ों का होगा। एक तो जैसे मैं टॉपिक देता हूँ हमेशा, वैसे एक टॉपिक दिया जाएगा आपको, कम से कम 3 मिनट्स के लिए बोलना है। और अगर लॉन्ग पॉजेज होंगे तो उसके भी नंबर कटेंगे। ठीक है। और टॉपिक दूंगा, और दूसरा ये डायरेक्शन से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगा। सो यू विल हैव टू गिव द डायरेक्शंस अकॉर्डिंगली। तो कौन आना चाहेगा? वुड एनीवन लाइक टू वॉलंटियर? कोई नहीं आना चाहेगा? ठीक है, हम बुला देते हैं। मैम आप आइए। ओके जी, सो all right, kindly give me directions from the market to the mosque. Which market? From which market? From Batlaos market to this mosque. Charminar. Yeah, Char Minar Masjid. ठीक है. From the Batlaos, you have to go straight and take a e-rickshaw, cross the road and take a e-rickshaw. Then go straight or go right, left. Then you have go straight with the e-rickshaw. In between you see police station. Then from the police station you have to turn right. Then again go straight with the along with the road along the road, and then there is a many markets, food markets, restaurant, and in between market you see hospital, Al Shifa hospital. Then go straight with along the road and um, take off with e-rickshaw. Cross the road. Yeah. Take off e-rickshaw. Get off from e-rickshaw. Get off from e-rickshaw and turn right, turn left. Then again go straight. You can see a shop, grocery shop. In front of grocery shop you see a mosque, Charminar Mosque, nearby a building, next to the building, Okay. Okay. or in between two buildings. Okay. So this one was of 5 numbers. 5 numbers का होगा ये. So I'll give you a 4 for this. For Okay. Yes. I've cut one number for थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, और आपने बाकी सब ये सब अच्छे से यूज़ किया है। बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करें, एक दो वर्ड्स और यूज़ किए जा सकते थे, सो दैट्स वाई। ओके, अब मैं आपको एक टॉपिक दे देता हूँ छोटा सा। शिकाजी करा था।
Okay, so the topic will be, you have to speak for only 3 minutes, बहुत ज़्यादा नहीं, 1 मिनट. I'll give you a minute to think. So, technology is good or bad for a nation? दोनों बोलना है. आप चॉइस दिए ना, टेक्नोलॉजी इज गुड और बैड फॉर अ नेशन, जो भी आपका ओपिनियन हो या जो भी हो वो आप बता दें. हर चीज की दोनों चीज होती है, बैड और गुड दोनों होती है. हाँ, तो अगर वो है तो वो बता दीजिए. दोनों बता दूं? हाँ बिल्कुल. टॉपिक तो ये है, अब इस पे आप चाहें तो कोई एक साइड ले लीजिए, चाहे दोनों बता दीजिए, वो आप पे डिपेंड करता है. उस पे नंबर कट नहीं होंगे कि आपने कौन सी साइड ली, क्या बताया. नंबर अगर कट होंगे तो इस पे होंगे कि थोड़ी बहुत जो ग्रामेटिकल वगैरह होगी उस पे होंगे. आर यू रेडी? ओके, स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, I talk about technology. What is technology? I mean, technology in this period is very important in our life. Technology is everywhere, like in office, in kitchen, in household works, in school, in office. Everywhere is technology in different form. In office, we u- we use internet or Wi-Fi. This is very important for work. In kitchen, we use grinder, fridge, oven. These are also very important. In school, we take online classes or fan light. Everything is very important. We are very habitual with these technologies, but these are very important. These are very good for us, and these are very helpful for us. They consume our time, or they connect people with each other, and we can talk, we can see from here to everywhere, our friend, family member, or everyone, or we can catch every news from wo I mean catch nahi aayega. Okay, news from cell phone. There is a very important role of technology in our life, but the most mm, harmful harmful point is these new generation is very habitual with mobile phone. They affect their mind, or they very harmful for us. They get unnecessary knowledge, or they get unnecessary games, or they consume our time, they consume our life, they destroy our life, our future. This is very harmful for us, but from this phone we can get so many things, good things, like we set up our business, online business. We take online classes, or we set our office. Everything is possible with this technology, but new generation can't live with this technology because we are very habitual. But that's it. Okay. वेरी गुड. I'll give you a 4.5 आउट ऑफ 5, क्योंकि आपने बहुत अच्छा बोला. और जैसा कि मैंने बोला था कि पॉजेज अगर होंगे तो नंबर कटेंगे. पॉजेज नहीं थे,
3 मिनट्स के लिए मैंने बोलने को बोला था, तो आपने 3 मिनट्स कवर करे। इट्स अ वेरी बिग थिंग। आप रेगुलर बोलते रहे। बहुत कम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, जो कि बहुत अच्छी बात है। छोटी सी जो ये 0.5 कटे हैं ना, मैं आपको बता देता हूँ। इन दीज पीरियड आपने बोला था। इन In this period. हाँ, इन दिस पीरियड ऑफ टाइम या इन दीज डेज, इस तरह से यू बोल सकते थे। कैच आपने बोला था, जो कि आपने बाद में उसको हटा दिया था, बट उसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ठीक नहीं था। CATCH। Catch. कैच, हाँ, आपने केज बोल दिया था। ठीक है, और बाकी थोड़ा बहुत इधर उधर भी आप हुए थे, इसके लिए मैंने 0.5 काटना सही समझा। अदरवाइज आपने बहुत अच्छा बोला। ठीक है, अब आप दोनों ने ये देख लिया कि मैम ने कैसा बोला, और उस पे 5 में से 4.5 मिले। ठीक है, तो यू विल हैव टू ट्राई कि ऐसा ही, इससे अच्छा ही बोलना है, ताकि एटलीस्ट 5 मिल पाए। क्योंकि आप देख रहे हो मार्किंग कैसे कर रहा हूँ, छोटी सी बात है, मैंने 0.5 काटे हैं। ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, यू कैन रिटर्न टू योर सीट। ध्यान से, ध्यान से। ओके, अब मैं बुलाऊं या अपने आप को यहाँ? ओके, प्लीज। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज kindly give me directions from Alex to Jamia Metro. From Alex to Jamia Metro. Yeah, Start करूँ? of course. First, you go straight and take a e-rickshaw. Then, then you go straight along the road. You turn left. There is a police station, and there are many vegetable and fruit shops. You go straight along the road, and there is a market. There is Batlaus market, and in in Batlaus market there are many shops and grocery shops, stores, etc. And then you go straight and take off the rickshaw. You reach Jamia Millia metro station. Done. Hmm. ओके। रिक्शा से उतरने को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो मैंने मैम को भी अभी अभी बताया Get था। out गेट, of okay. गेट ऑफ। Get कट off. गया ना नंबर। ठीक है, आपने जो यूज करा वोकेबुलरी। अच्छा, मैं नंबर इसलिए कट कर रहा हूँ मेन, क्योंकि मैंने अभी अभी मैम को बताया था। अगर मैं नहीं बताया होता जैसे, तब तो चलो ध्यान फिर नहीं भी दिया। मैं भी नहीं करता, 0.5 करता, लेकिन इसके लिए कटेगा। ठीक अच्छा, आपने जो यूज करा, गो स्ट्रेट करा बहुत बार, टर्न लेफ्ट करा, अलोंग द रोड करा। है। हाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि क्रॉस द रोड कोई क्यों यूज नहीं कर रहा है। क्योंकि क्रॉस करना ही नहीं है रोड। यहाँ से जाके सबसे पहले आप रिक्शा लेने के लिए क्रॉस द रोड करोगे। अच्छा, आपने किया था। ओके, गुड। मुझे वो आने वाला याद था। याद ही तो नहीं करना था। ठीक है ना। और ये आपने थोड़ी सी कम वोकेबुलरी यूज करी हम्म। है ना। जैसे कि बहुत सारे ऑप्शंस थे, इन फ्रंट ऑफ, अपोजिट, बिहाइंड, बिटवीन, नेक्स्ट टू। ये तो ऑलमोस्ट सारे ही नहीं करे आपने। हाँ, वो मैंने नोटिस किया था कि आपने वो सब किया था, इसीलिए मैंने आपको 4 नंबर दिए। तो देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। और एक ये गलती तो है ही, टेक ऑफ द रिक्शा वाली। हम्म।
टेक ऑफ द रिक्शा का मतलब क्या हुआ? टेक ऑफ द रिक्शा उठाना। मतलब आपके ऊपर रिक्शा रखी हुई है और रिक्शा को अपने ऊपर से हटा दो, टेक ऑफ द रिक्शा। अच्छा। गेट ऑफ फ्रॉम रिक्शा, रिक्शा पे हो आप, गेट ऑफ फ्रॉम फ्रॉम रिक्शा, रिक्शा। उतर जाओ रिक्शा पे, ठीक है। सो आपको 3 देने पड़ेंगे मुझे इसमें, ठीक है। ऑल राइट, नाउ द नेक्स्ट सेक्शन, द नेक्स्ट सेक्शन। So what you have to speak about, the topic is, should students use mobile phones in schools? I'm giving you a minute to think. स्कूल में मोबाइल फोन यूज करना चाहिए या नहीं? हाँ, कहाँ पे? स्कूल में? हाँ, स्कूल में। हाँ, ऑब्वियसली बात है, नहीं। तो उसका जो भी रीजन वीजन हो वो सब आपको देना है। ट्राई करना है पॉजेस कम लीजिएगा, क्योंकि पॉजेस के नंबर कटेंगे। हो गया 1 मिनट, ठीक है। ऑलराइट, स्टार्ट। I will say about should students use mobile phones in school. So I think students don't use mobile phone in school because they distract their mind, because it's distract their mind. If students use mobile phones in the school, so they don't study, they don't focus on the studies, they don't focus on the teacher, they every time use mobile phones, they are every time use mobile phones. And I think in the school, if students if students use mobile phones in the classroom, and जो भी आ रहा है बोल and, दीजिए, अवॉइड पॉजेस। and वक्त के in साथ front आपके नंबर कटते जा रहे हैं। and in, कुछ नहीं आएगा, and in front of teacher हम्म। they don't focus on their study, they don't they don't study in normal way, they every time use mobile phones and use social media. And if I think schools not allow mobile phone in schools. And
ओके, थैंक यू। मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट टाइम से मेन टेस्ट तो आप लोगों का स्पीकिंग का हुआ करे और ये रिटन वाला थोड़ा सा हुआ करे, क्योंकि वी नीड टू इम्प्रूव। आप ही बताइए कितने दूं आपको, कंसिडरिंग द पॉजेज। पता है, इस पूरी बात में 3 मिनट में मुझे बस एक बात समझ में आई कि दे डोंट फोकस। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या था? पॉजेस थे, और उसके अलावा दे डोंट फोकस था, और वो अलग अलग जगह पे दे डोंट फोकस था, दे डोंट फोकस था, फिर पॉजेस थे, फिर दे डोंट फोकस था। नहीं, पॉइंट बहुत सारे हो सकते थे, वही बात है कि जो 1 मिनट मिला था ना उसमें आप डिफरेंट पॉइंट्स सोचते। एक, हाँ, ये अलग, एक आपने एक अलग बात जो बोली वो ये बोली कि वो सोशल मीडिया भी यूज करते हैं, और फिर वापस आप दे डोंट फोकस पे आ गए, है ना? तो पॉइंट्स बहुत कम सुनने को मिले मुझे। पॉजेस थे, सो मे बी वी नीड टू वर्क मोर ऑन आवर थिंकिंग पार्ट ऑल्सो, कि जल्दी से 1 मिनट में, मतलब अगर वो घड़ी दौड़ रही है 1 मिनट की, तो उसमें माइंड में ये सोचने के बजाय कि यार टाइम जा रहा है, टाइम जा रहा है, आप अपनी बात सोचो। जब टाइम चला जाएगा तो हम बता ही देंगे कि टाइम हो गया 1 मिनट, हम्म। है ना? तो आपको थोड़ा सा उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। आप घर पे भी रैंडमली कोई भी टॉपिक उठा लिया करें, और उसके बारे में आपने खुद ईमानदारी से 1 मिनट का टाइमर लगा के सोचिए खुद, फिर अपने आप ही 2 या 3 मिनट बोलिए। सर मैं इनको बोलती हूँ कोई टॉपिक दे, देती नहीं है कोई टॉपिक। अरे भाई, वो आपकी टीचर थोड़ी है। तो मतलब ये दे तो थोड़ा मैं बोल लूंगी, मैं खुद ही ले लूँ टॉपिक। चलिए तो, नहीं, आप खुद भी ले सकते हो, बाकी मैं जो ग्रुप बना रखा है ना, मैं उसमें मैं टॉपिक सेंड कर दूंगा 5। ठीक है, तो उस पर आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, बिकॉज यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन दिस वन। अब मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं 2.5 से ज़्यादा दूं या ना दूं। चल तू ही दे दीजिए, तो क्योंकि मैंने ज़्यादा अच्छा नहीं बोला। चलिए कोई बात नहीं, मैं 2.5 ही दे देता हूँ, ठीक है? अपने आप को इतना डिमोटिवेट भी नहीं करना है, बट ये है कि ये नंबर सिर्फ इसीलिए है, ये दिखाने के लिए कि यू नीड टू वर्क ऑन दिस। इससे कोई किसी का कुछ पता नहीं लग रहा है भाई, कोई कौन कितना इंटेलिजेंट है या कौन नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस आपको इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, बस इसलिए ये नंबर है, ठीक है? और कोई बात नहीं है। ओके, थैंक यू कैन रिटर्न। यस, सो काइंडली गिव मी डायरेक्शंस। आपको किसी पार्क वगैरह का रास्ता पता है यहाँ से? यहाँ से तो अशोका पार्क नहीं पता है। फ्रॉम अशोका पार्क? एलेक्स। कहाँ से, कहाँ का पता है? अशोका पार्क वो जो है, हाँ जी। वो वाला, हाँ, वो अशोका पार्क है ना? ठीक है, ओके, गिव मी डायरेक्शन फ्रॉम एलेक्स टू अशोका पार्क। From Alex to Ashoka Park, first you will go straight and then cross the road, take rickshaw, e-rickshaw. Um, you will go with e-rickshaw along the road. Between the road, there is police station in front of academy. Then you will turn left and then again uh, go straight. Then get off from e-rickshaw. You will reach Badlaus. After you will reaching Badlaus, then you take again e-rickshaw from to Ashoka Park. You will go along the road, uh, and there is many grocery stores and bakery also in Badlaus. In the Badlaus, in front of bakery, there is a government school. Then you will go straight and turn right.
behind behind the stationery there is a transform. Uh, from the transform you will go right with the e-rickshaw. In front of coconut water shop there is a basketball shop. Next to the basketball shop you will reach to Ashoka Park. Good. Nice. Now the good things you used: go straight, cross the road, between, in front of, turn left, etc. So it's a very good thing कि आपने बहुत सारे vocabulary का यूज़ किया, एंड आई अप्रिशिएट इट. आपने गेट ऑफ फ्रॉम रिक्शा भी ठीक बोला, तो उसके लिए भी गुड. थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक हुई, जैसे कि आफ्टर यू विल रीचिंग, Reached. सॉरी, Reached. रीच्ड. जी. यू विल के बाद रीच कैसे लग सकता है? आफ्टर यू रीच, After you reach. रीच, सिंपल रीच. ठीक है, आफ्टर यू रीच, विल रीचिंग काट के रीच हो जाएगा, तो आफ्टर यू रीच जहां पर भी, फिर उसके आगे की बात करनी. एक आपने बोला देयर इज मैनी ग्रोसरी स्टोर्स, क्या गलती है? There are. यस, क्योंकि मैनी है, ये भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गई. जी. अच्छा, जो हमारी गली के एंड में भी है ऑरेंज कलर का, जिससे बिजली का Transfer. वो होता है, हाँ, उसको क्या बोलते Transfer. हैं? उसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर. Trans. ट्रांसफॉर्मर, Okay. ठीक है. उसकी पूरी स्पेलिंग यही होती है, TRANS, ट्रांस, FORMER, फॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर. Okay. वो जो ट्रांसफॉर्मर मूवीज जो आती है ना, ट्रांसफॉर्मर नाम से, ट्रांसफॉर्मर्स नाम से मूवीज आती है, उसमें में रोबोट्स होते हैं मैकेनिकल टाइप, बड़े बड़े से, वो ट्रक चलता है, वो उसका एकदम आदमी बन जाता है, वो ऐसा कर हाँ वो कुछ है. तो मैंने देखा है शॉर्ट्स में. हाँ, तो वो ट्रांसफॉर्मर, वो वही वाला ट्रांसफॉर्मर ही इसको बोलते हैं, ठीक है. Okay. क्योंकि वो पता नहीं कुछ ट्रांसफॉर्म करता है बिजली में, मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स की इतना आइडिया नहीं है. सो ठीक है, ये है. बाकी उतनी मिस्टेक्स मुझे नहीं मिली इसमें, थोड़ी बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी, There are. बट क्योंकि आपने इनका इतना सारा यूज़ किया है, इस वजह से नंबर काटते हुए भी मैं थोड़े कम नंबर काट रहा हूँ. 4.5 मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है. अब तक डायरेक्शंस में सबसे ज़्यादा है, 4.5, ठीक है. नाउ आई विल गिव यू अ टॉपिक टू स्पीक. टॉपिक क्या दिया जाए? ओके, सो द टॉपिक इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ड्रेस कोड Of इन school. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? हाँ मैं बोल रही समझ में आया? हूँ. आगे समझ बोल देंगी? वाह, मैं मैंने गलत टॉपिक दे दिया नहीं मैंने शायद. कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए स्पेशली ड्रेस खरीदी थी. अच्छा, ये दो बार वाह भाई वाह, चलिए ठीक है. बहुत दिक्कत हुई थी उस टाइम. ओके, सो डू यू नीड अ मिनट टू थिंक, या आपको ज़्यादा उसमें अच्छा मुझे आता है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है. हाँ, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द ड्रेस कोड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स? क्योंकि मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये भी देखा है कि वो लोग हिजाब भी नहीं पहनने देते, जी. है ना. सो वो सब आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मैं जानना चाहता हूँ. इफ़ यू नीड अ मिनट टू थिंक, आई कैन गिव यू, या अगर आपको ज़्यादा ही अच्छा आता है तो रहने दे. नहीं हमें एक मिनट ठीक है, तो ठीक चाहिए. है, एक मिनट सोचिए. बट रिमेंबर 3 मिनट्स के लिए बोलना है, सो थिंक अबाउट द पॉइंट्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, एक्सेट्रा, जो भी है.
Brother John, Brother John, on the way, on the way. 1 minute is up. Okay. Okay. Start. I would like to say about the competitive थोड़ी सी exam. आवाज तेज रखेंगे क्योंकि फैन बहुत तेज चल रहा है. I would like to say about the competitive exams dress code. Should yes or no? So, in my point of view, should not do the dress code because of this is very private thing, and this is depend on her, depend on their uh, will, depend on their उनके ऊपर डिपेंड करता है schools में Personal choice will will depends on their will, depends on their personal choice. depends on their will and their personal choice they want or they don't want. So this is very this is not necessary in my point of view. This is, because of the dress code there are many problems creates and students are facing many problems on uh, their exams during their exams they are facing dress code problem also they are also facing her their exams stress and also facing dress code because of uh, this is their personal choice to take dress code or not. And if I talk about my experience, so this was a very bad thing, and I think this is not doing for student because of student are firstly facing her studying issue and they are also facing their dress code issue, so they are frustrated and they don't on the exam time also they stress too much the security stress and also dress code dress code stress. If you Okay. Thank you. The time is up. Hmm. Seems like you had a lot in your mind, but you could not put them in words. Yes. What I liked is that you used in my point of view. आई थिंक मैंने आपको आप लोगों को ये सिखाया भी है कि अगर अपनी कोई बात रखनी होती है तो कैसे बोलते हैं इन माय पॉइंट ऑफ व्यू एंड ये सब आप लोगों को सिखाया है? पता नहीं मैंने और किसी को सिखाया था इन माय ओपिनियन और ये सब ये आज था किसी में? अच्छा 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 तो पता नहीं मैं ये कोर्स में तो था होना चाहिए क्योंकि मैं था चलिए मैं चेक कर लूँगा. बाकी यू सेड इन माय पॉइंट ऑफ व्यू सो दैट्स अ गुड थिंग क्योंकि ये बकायदा सिखाया जाता है कि इस तरह से बोला जाता है. And you did bring some good points and that's a good thing. Now थोड़ी सी जो grammatical errors थे वो मैं आपको बता देता हूँ. Should not do the dress code. There should not be any dress code. The dress code should not be there. इस तरह से बोला जाएगा. Should not do the dress code का तो मतलब क्या होगा ना कि नहीं करना चाहिए ड्रेस कोड. हाँ तो या तो फिर नहीं लगाना चाहिए तो
should not be put, the dress code should not be put on the students, इस तरह से यूज कर सकते थे इसको. There are many problems creates. हाँ, तो मतलब जैसे ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा ठीक नहीं है, आगे पीछे हो गया, इसको ऐसे बोल सकते थे. सॉरी. हाँ, दे फेस मैनी प्रॉब्लम्स, या तो फिर ये इसी बात को अगर करें कि देर आर मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट को बोले तो मैनी प्रॉब्लम्स गेट क्रिएटेड, है ना. वर्ड्स को थोड़ा आगे पीछे ठीक से रख के इस तरह से यूज किया जाता है. हाँ, सो देर आर मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट्स के बजाय हम ऐसे बोल सकते थे कि मैनी प्रॉब्लम्स गेट्स क्रिएटेड. मैनी प्रॉब्लम्स गेट्स क्रिएटेड, या द स्टूडेंट्स फेसेस मैनी प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हैं. हाँ, द स्टूडेंट्स फेसेस मैनी प्रॉब्लम. ओके, नेक्स्ट वन इज आई थिंक दिस इज नॉट डूइंग फॉर स्टूडेंट. आई थिंक दिस इज नॉट डूइंग फॉर स्टूडेंट, मतलब आप क्या कहना चाह रहे थे. आई थिंक दिस शुड नॉट बी डन, दिस शुड नॉट बी डन विद स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के साथ ये नहीं करना चाहिए. आई थिंक दिस शुड नॉट बी डन विद स्टूडेंट्स. ठीक है, तो इस तरह से होगा कि आई थिंक दिस इज नॉट डूइंग फॉर स्टूडेंट्स गलत था, और आई थिंक दिस शुड नॉट बी डन विद स्टूडेंट्स सही है. सो पॉजेज भी थे थोड़े क्योंकि आप सोच रहे थे, और जैसे कि मैंने कहा यू हैड मेनी पॉइंट्स इन योर माइंड बट यू कुड नॉट पुट देम इन वर्ड्स. ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं, और उतना ज़्यादा कंटेंट की थोड़ी कमी थी. कंटेंट समझ रहे हो आप. कंटेंट वो कि मतलब किसी भी सेंटेंस में या किसी भी बात में बातें कितनी रखी है, आपने कितनी बातें रखी हैं, है ना, कितनी बातें आपने रखी हैं सामने, उसको कंटेंट बोलते हैं. तो उसकी भी कमी थी जिसकी वजह से आई विल गिव यू आ 3.5. ठीक है, बाकी अच्छा था, बट यू आपको पता लग गया वेयर डू यू नीड टू वर्क ऑन. ठीक है, ऑल राइट. हाँ बिल्कुल, वही जो मैं टॉपिक्स भेजूंगा ना ग्रुप में, तो आप वो देख लेना. ठीक है, और टॉपिक पे आप भी बोलना और आप भी प्रैक्टिस करना, तो मैम भी कर लेंगी, तो प्रैक्टिस हो जाएगी, तो उसमें सही हो जाता है. ठीक है, ओके, थैंक यू. राइट, सो नेक्स्ट टाइम से मुझे थोड़ा ये ध्यान रखना है कि जो टेस्ट वाला डे होगा उसमें आप लोगों का स्पोकन वाला प्रायोरिटी से लूँ, और जो दूसरा वाला है उसको चल जाए, मतलब वो थोड़ा कम ले लूँ और ये वाला ज़्यादा लूँ, मुझे स्पोकन की ज़्यादा जरूरत है. ठीक है, ओके देन दैट्स इट फॉर टुडे, एंड लेट मी सी. आई डोंट थिंक वी हैव अ होमवर्क टुडे. अच्छा, होमवर्क है थोड़ा सा, एक मिनट. इसकी वैसे भी अभी आप लोगों को थोड़ी सी और प्रैक्टिस करनी है, तो इसलिए होमवर्क ये दे देता हूँ. राइट 5 डायरेक्शंस from your house to any place in your colony. Example: park, shop, mosque, etc. Use at least, इसी में कंटिन्यू है, two prepositions and two instruction words like
turn or go. And this week you will learn about, or I must say you will revise about how to talk about your daily routine. इस वीक में डेली रूटीन का फिर से रिवीजन है, उसको और थोड़ा परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे. And two instruction words like turn or go. All right, that's it for today. Thank you.